السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبلغ صلواتك وعزة معلومة۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلی وحی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس میں ارشاد فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ نے سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ، پڑھیے، اور بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس وحی کو صحابہ کو سنایا، ساری قوم کو کہ پڑھو۔ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ پڑھنا کب ہے؟ جب ہم علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کے بعد ہی ہم کو پڑھنا ہے۔ جب علم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں علم کے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع اختیار کرنا پڑے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ علم کی اشاعت کو، علم حاصل کریں اس کے لیے حضور نے کئی کام کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم پہنچایا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر اور صحابہ کو علم پہنچایا۔ حضور نے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے تعلیم کا بہت اہتمام کیا۔ چھوٹے بچے تعلیم حاصل کریں، چھوٹے بچے پڑھیں۔ حضور نے اس کے لیے بہت 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 کوششیں فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن حضور نے انہیں ایسا علم سکھایا، انہوں نے ایسی تعلیم حاصل کی کہ وہ بہت قابل بنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے آپ نے پانی رکھا، حضور کی خدمت انجام، حضور کی آپ نے خدمت کی، حضور کے لیے پانی رکھا۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو علم عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 13 سال کی عمر کیا تھی؟ 13 سال کی، لیکن تفسیر و حدیث کے بہت بڑے عالم بن گئے۔ بڑے بڑے صحابہ آپ سے تفسیر و حدیث کا علم سیکھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورے کرتے تھے، دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے مشورے کرتے تھے، ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کرتے تھے، ان سے رائے حاصل کرتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 سال کی، 7 ایئرس عمر تھی، لیکن یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی 13 احادیث روایت فرماتے ہیں۔ حضور کی 13 حدیثیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے حضور کی احادیث سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ حضور کی جب اس دنیا سے
तशरीफ ले गए। इमाम हसन की उम्र क्या थी? 7 साल की, सिर्फ 7 साल। लेकिन 7 साल की उम्र की और इमाम हसन 13 हदीसें हुजूर के बयान फरमाते हैं। आज हदीस की किताबों में इमाम हसन की 13 हदीसें हमको मिलती हैं। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 6 साल के थे, सिर्फ 6 साल की उम्र थी उनकी तब जब हुजूर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 हदीसें हुजूर से बयान फरमाते हैं, हुजूर से रिवायत फरमाते हैं। उन्होंने 8 अहादीस सुनी और 8 हदीसें हदीस की किताबों में हमको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिली। इतने ये लोग छोटे छोटे थे, लेकिन इन्होंने इल्म हासिल किया और आज इनकी हदीसें बड़े बड़े उलमा ताबईन और उनके बाद बड़े बड़े मुहद्दिसीन इनकी हदीसें पढ़ते। सिर्फ 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में इन्होंने अहादीस हासिल की, अहादीस की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ लाए, देखा कि मस्जिद में एक तरफ एक जमात है, सहाबा इकराम है रज़ियल्लाहु अन्हुम, इबादत में है, दुआ में, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। दूसरी तरफ एक और महफिल बैठी हुई है, कुछ और सहाबा बैठे हुए हैं और वो सहाबा इल्म हासिल कर रहे हैं। वो सहाबा क्या कर रहे हैं? इल्म हासिल कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों महफिलों को देखे, दोनों मजालिस को देखे, देख कर इरशाद फरमाए कि दोनों खैर पर, दोनों मजलिसें दाई पर हैं, दोनों मजलिसें अच्छी हैं, लेकिन मुझे इन दोनों में वो महफिल पसंद है जिसमें इल्म सिखाया जा रहा है, क्योंकि मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम सिखाने वाला बनाकर भेजा है। और हुजूर उस महफिल में बैठ गए जिस महफिल में इल्म सिखाया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में बैठ गए जिस महफिल में इल्म सिखाया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तालिब इल्म होता है, इल्म हासिल करने वाला जो होता है, इल्म तलब करने वाला जो होता है, तालिब इल्म के लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। तालिब इल्म जब इल्म हासिल करने के लिए आता है तो फरिश्ते अपने उसके लिए पर बिछा देते हैं और जमीन और आसमान की सारी मखलूक तालिब इल्म के लिए दुआएं करती रहती है और यहाँ तक कि समंदर की मछलियां भी तालिब इल्म के लिए दुआएं करती हैं, तालिब इल्म के लिए दुआएं करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुअदु आलिम, या तो आलिम बनो और मुतअल्लिमन, या मुतअल्लिम बनो यानी तालिब इल्म बनो, और मुस्तमिअन, या फिर इल्म की बातें सुनने वाले बनो और उसे सुनने वाले बनो, और मुहिब्बन, या कम अज कम इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुन खामिसन, और 5वें मत बनो, हलाक हो जाएंगे, हलाक हो जाओगे। 5वें मत बनो, हलाक हो जाओगे। 5वें क्या? इल्म से और अहले इल्म से बग़्ज़ रखने वाले मत बनो, इल्म से और अहले इल्म से बग़्ज़ रखने वाले मत बनो। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामी कमेटी की सरपरस्ती में पिछले तकरीबन 35 दिन, 1 महीने से कुछ ज्यादा अरसा, बीच में कुछ ताक़ीदात किया है। ये तलबा आते रहे, पढ़ते रहे, इल्म हासिल करते रहे स्कूल की छुट्टियों की वजह। लेकिन ये जो हमारा मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीने चलता है, रमजान का 1 महीना छोड़कर स्कूल की छुट्टियों की वजह। लेकिन ये जो हमारा मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीने चलता है, रमजान का 1 महीना छोड़कर पूरा साल चलता रहेगा और मगरिब का इशा ये मदरसा रोजाना चलता रहेगा। और इसमें पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं, मुदर्रिसीन हैं, एक जमाना था वो भी यहाँ पर पढ़ते, वो भी यहीं पर पढ़ते थे। आज पढ़कर वो काबिल बने और कई ऐसे हमारे पास के हुफ़्फ़ाज़ हैं, अतराफ की कई मसाजिद में आज इमामत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमारे अतराफ के कई मस्जिदों में इमामत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और कई हुफ़्फ़ाज़ ऐसे हैं शहर की कई मसाजिद में, बल्कि बाज़ अज़ला की मसाजिद में भी कुरान मजीद तरावी में सुना रहे हैं, कुरान मजीद तरावी में सुना रहे हैं।
क्योंकि स्कूल की छुट्टियां थे और स्कूल की छुट्टियों में बच्चे फ्री रहते हैं, घर में पढ़ते नहीं हैं। ये जो समर क्लासेस हैं आज से तकरीबन 6 साल पहले भी 6-7 साल पहले भी चलते थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि माह रमजान मई के महीने में आने लगा और मई के महीने में छुट्टियां रहते हैं, इसलिए उस वक्त ये समर क्लासेस का सिलसिला खत्म हुआ। फिर उसके बाद लॉकडाउन कोविड वगैरह इन्हीं दिनों में बहुत जोरों पर रह रहा था, इसलिए भी ये सिलसिला खत्म हुआ। अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस साल से इस सिलसिले का फिर आगाज किया गया है। बच्चे पढ़े हैं और तालीम हासिल किए हैं। अब ये बच्चे आपके सामने अपनी तालीम का मुजाहरा करें, ये बच्चे आपके सामने कुछ पढ़कर सुनाएंगे, आप इनको सुनिए, आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा और आपको मालूमात है तो आपकी मालूमात में पुख्तगी होगी, बच्चों की हिम्मत अफजाई होगी। ये मेरे बच्चे अगर नहीं है तो मैं ये ना समझूं कि मेरे बच्चे तो नहीं है, मैं क्यों खुश हूं, मैं क्यों बैठूं, ये ना समझूं। ये हमारी कौम के बच्चे, ये न्यू आने वाला फ्यूचर का जनरेशन है, यही बच्चे हैं। हो सकता है कल के दिन कोई बच्चा इनमें आलिम बन जाए, हो सकता है कल के दिन इन्हीं में से कोई बच्चा किसी मस्जिद का खतीब बन जाए, किसी मस्जिद का इमाम बन जाए, जैसा कल जो बच्चे पढ़े थे आज किसी मस्जिद के खतीब है, किसी मस्जिद के इमाम। तो ये बच्चों की हिम्मत अफजाई करना हमारा फरीजा है और ये सोच कर करना कि ये हमारी कौम के बच्चे हैं, ये हमारे आने वाले जनरेशन है, आने वाली हमारी नस्ल है और यही नस्ल फिर आइंदा की नस्ल को पढ़ाए। तो इसलिए इन बच्चों के मुजाहरे को आप गौर से समाप्त फरमाइए और मगरिब का इशा अपने बच्चों को जरूर भेजिए ताकि तालीम वो बच्चे हासिल कर सकें। मैं इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होता हूँ और आपसे यही गुजारिश है आप इत्मीनान से बैठिए और समाप्त फरमाइए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस हकीकत में खार है दुनिया।